Hello to all. I am the student of Lucknow University, and today I am going to tell some important question that can be very helpful in your upcoming intense examination of LLB honors. So let's start. So the first question is that which of the following amendment act of the constitution added provision regarding municipalities? So one second. Okay. So the question is that which of the following amendment act of the constitution added provision regarding the municipality? So your option is that the constitution 72nd amendment act, or the 73rd amendment act, or 74th amendment act, or 76th amendment act of 1994. So your correct option is option C. Sorry. So your correct option is that option C, the Constitution 74th Amendment Act 1993. Next question is that which of the following article contain provision regarding municipality? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो म्यूनिसपैलिटी के रिगार्डिंग प्रोविजन रखता है. सो द आंसर इज दैट ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 243 P to 243 ZG. Now the next question is that which of the following part of the constitution contain provision regarding municipality? इसमें पूछ रहा है कि which of the following part. जैसे सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा था कि which articles, अभी पूछ रहा है कि which of the following part जो है constitution, which of the following part of the constitution that keep up the provision related to the municipality. So your option is option B, that is part 9A. So moving further, next question, that which of the following article of the constitution deal with the establishment of the Nagar Panchayat, municipal council and municipal corporation? So your option is article 243Q, option A. Now the next question is that which of the following article of the constitution deal with the reservation of seat to SC and ST, मीन्स शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. ये पूछ रहा है कि इसमें मतलब कौन से आर्टिकल हैं जो कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है SC ST को. सो योर ऑप्शन इज दैट आर्टिकल 243T, ऑप्शन सी. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडेड प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत. इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो पंचायत के रिकॉर्डिंग प्रोविजन लाया कुछ, जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन 72nd अमेंडमेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993, और ऑप्शन सी द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993 और द 74th अमेंडमेंट एक्ट 1994. सो इसमें से आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, that is the constitution, the amendment of constitution, the amendment 73rd amendment act 1993. जो अमेंडमेंट जो हुआ था 73rd अमेंडमेंट, उसी के अंतर्गत जो था कॉन्स्टिट्यूशन में म्यूनिसपैलिटी के रिगार्डिंग प्रोविजन लाया गया था. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत. इसमें पूछा था कि कौन से आर्टिकल हैं जो पंचायत के रिकॉर्डिंग कुछ रूल रेगुलेशन या प्रोविज़न रखते हैं कि कैसे पंचायत वर्क करेगा, कैसे इलेक्शन होंगे. सो इसका मेंशन है आपके आर्टिकल, सॉरी पहले ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए बोलता है 243 टू 243L, 243 टू 243M, 243 और 243N, और ऑप्शन डी बोलता है 243 टू 243Q. सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 243 टू 243Q. Now, your eighth question is that which of the following part of the constitution contain provision regarding पंचायत. इसमें ऑप्शन ए है पार्ट 9, पार्ट 9A, पार्ट 10 और पार्ट 11.
तो मैं पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा पार्ट है जो पंचायत की रिकॉर्डिंग प्रोविज़न रखता है, कौन सा मतलब आर्टिकल है जो पंचायत की रिकॉर्डिंग कुछ प्रोविज़न रखता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये पहले इनिशियल में पढ़े थे म्यूनिसिपैलिटी का, अब क्वेश्चन रिलेटेड आ रहा है पंचायत का। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जैसे पार्ट 9 of the Indian Constitution that contain the provision regarding the panchayat. And the next question is that as per the Article 243B of the Constitution, panchayat shall be constituted at, इसमें से बोल रहा है कि एज पर आर्टिकल 243B पंचायत शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब पंचायत कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के मतलब सेंट्रल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है। ये पूछ रहा है कि पंचायत किस लेवल पे होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज विलेज लेवल पे भी होता है, इंटरमीडिएट लेवल पे भी होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पंचायत मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ नॉट एक्सीडिंग, बोला कि पंचायत जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा इन अ स्टेट हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ नॉट एक्सीडिंग, मतलब पॉपुलेशन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके ऑप्शन हो जाएंगे 20 लाख, ऑप्शन ए। एंड नाउ another question is that which Indian state has prescribed minimum education qualification for the candidate contesting पंचायत polls। इसे पूछ रहा है कि जो मतलब ये एक पी वाई की क्वेश्चन है जो क्लैट में आ चुका है पहले। सो ये बेसिक क्वेश्चन था कि इसके मतलब इस टाइप के क्वेश्चन चांसेस है कि आपके एल एग्जाम में भी आए, बीएचयू में भी आए। सो ऐसा ये नहीं है कि क्लैट में आ गया तो इस स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो इस लेवल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट क्लैट का जो लेवल होता है उससे तो काफ़ी कम रहता है लेवल जो स्टेट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। सो द क्वेश्चन इज दैट विच इंडियन स्टेट हैज प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट कंटेस्टिंग पंचायत पोल्स। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है इंडियन जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखता है फॉर कैंडिडेट कंटेस्टिंग पंचायत पोल, तो ऑप्शन बी, दैट इज हरियाणा। सो today's for question is that up to the 11th question. Now we will further discussing further question from tomorrow on the regular basis। एंड क्योंकि मैंने कुछ पिछले कुछ दिनों से या कुछ वीक से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ हमारे भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रहे थे। सो अब मैं अपना एफर्ट और कोशिश करूँगा कि अब अगले जब तक एग्ज़ाम्स आप लोग के इंटेंस एग्ज़ाम जब तक हो नहीं जाते तब तक रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालूँ। और जैसा कि आप लोग के एग्ज़ाम शायद आई थिंक सितंबर के पहले वीक में और टेंटेटिव डेट है। सो अगर आप अब से भी थोड़े सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में एलयू के उतना कुछ ज़्यादा खास पूछता नहीं है हाई लेवल का। अगर आप लो लेवल का बेसिक एकदम आपका क्लियर है तो आप इसको आसानी से क्रैक कर जाएंगे। इसमें क्या है कि जैसे कि एक समुद्र होता है, तो समुद्र की जैसे कि एग्ज़ाम जो एलयू है ये समुद्र की गहराइयों के डेप्थ में नहीं जांचता, सिर्फ समुद्र की सतहरी जो ऊपरी सतह होती है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ऊपरी सतह के ही क्वेश्चन पूछते हैं। उसके डेप्थ में जो होता है वो आपको कैंपस में पढ़ाया जाएगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब। कि आपका नॉलेज नहीं चेक करते कि आप कितने नॉलेजेबल बनते हैं, कितना आता है कितना नहीं। ये चेक करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, आप कैपेबल हैं कि नहीं पढ़ने के लिए। तो ये बस बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसा ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है कि अरे नहीं होगा तो क्या होगा, फिर कहीं एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि एडमिशन आपका हो जाएगा अगर आपने थोड़ी सी भी ढंग की मेहनत की है, एवरेज में है वर्क आपने किया, हर सब्जेक्ट को आपने अच्छे से और बस बेसिक बेसिक ही क्लियर किए, तो चांसेस काफ़ी हद तक है कि एडमिशन आपके हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल फॉर नेक्स्ट वीडियो फॉर अनदर वीडियो रिलेटिंग टू योर entrance exam of LLB honors।
So take care of you and please like the video and subscribe the channel. Thank you lot.